Yes, student. This is the lecture number 6 of ecology, and the lesson is organism and population. Today's topic is the population interaction. Means that population interaction is an inter-specific interaction amongst the individual of a population of different species. क्लियर हुआ? इस इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इस कॉल्ड पॉपुलेशन इंटरेक्शन. अब वो इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? क्या वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियल है उनका एसोसिएशन? नाउ दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. तो प्लस वर्ड इज यूज हेयर, प्लस साइन इज यूज हेयर फॉर व्हाट? फॉर बेनिफिशियल रिलेशनशिप, एंड नेगेटिव फॉर हार्मफुल. एंड दिस जीरो नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. क्लियर हुआ? तो तीन वर्ड मेरे याद रखिएगा, प्लस बेनिफिटेड, negative, harmful, and third one is the neutral interaction, means that neither benefited nor harmed. Clear हुआ? तो there are 6 type of interaction in case of ecology. Clear है? Number 1 is the mutualism. Now mutualism means that species A plus species B plus means both individual, the individual of two different species in which both are benefited with each other. इस प्लस प्लस साइन से क्या पता लगा कि both are benefited with each other. It's called mutualism. It's called mutualism. Now move to the predation. You know that कि predation, for example, that tiger is a predator which kills the weaker animal like deer is the prey. So it is the interaction in which tiger is benefited because the tiger consume heron as a food, but the deer is harmed. deer क्या हुआ? harmed हुआ. वो तो जान से गया ना. तो this is a relationship interaction between the two organisms in which one species is benefited and another is harmed. Clear? Like in case of competition, negative means that both are harmed. Both are harmed. Third one is the parasitism, in which one organism complete its life cycle with the help of the one or two more organisms. So here parasite is plus, but host is suffered with so many diseases, so host is harmed. So this type of the relationship, this type of the interaction is called parasitism. It's called parasitism. Then is the commensalism. The sign is plus 0, plus neutral, means that in this type of the population interaction, one species is benefited and the other species like B species is neither benefited nor harmed. Now the last one is the amensalism. The sign is negative, neutral, means that one species is neither benefited nor harmed and one species is harmed. So these are 6 interactions. क्लियर हुआ? ये 6 इंटरेक्शन पॉपुलेशन के हैं. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल दो डिफरेंट स्पीसीज के उनके बीच में कैसा उनका इंटरेक्शन है. क्या वो फ़ायदा एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं कि एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है दूसरे को हार्म्ड होता है, कि एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नाइदर हार्म नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड होता है. इस तरीके से आपको इस टॉपिक को सीखना है. तो बात करते हैं आज म्यूचुअलिज्म की. बच्चों म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया कि द इंट्रैक्शन इन विच बोथ द इंडिविजुअल्स आर बेनिफिटेड विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइकेन. You know that the lichen is a composite organism. It consists of algal part, algae होती है इसमें एक स्पीसीज, दूसरा पार्ट हो जाता है फंगल पार्ट. जो एल्गल पार्ट होता है उसको कहते हैं फाइकोबॉयंट
और जो फंगल पार्ट होता है उसको कहते हैं माइकोबॉयंट। क्लियर? तो बच्चों जो फंगल पार्ट है वो एल्गी को एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या दे देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है, वाटर देता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और उसके बिहाफ पर एल्गी फंगल को क्या देती है? प्रिपेयर्ड फूड। क्या देती है? प्रिपेयर्ड फूड। क्योंकि फंगस कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक, अपना खाना नहीं बना सकता है। तो आपने देखा कि लाइकेन एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हुआ जिसमें एल्गी को भी बेनिफिट हुआ और फंगस को एल्गी से, एल्गी को फंगस से। मीन्स दैट इन दिस टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन both the individuals of different species are benefited। क्लियर हुआ? नाउ we move to the another example. The example is mycorrhiza. Now the word is mycorrhiza. बच्चों mycorrhiza is an association between fungi and root of higher plant। रूट ऑफ हायर प्लांट। बच्चों ये फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन है। सेम यहाँ पर है कि जो फंजाई है वो प्लांट्स को क्या दे रही है? एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स, और उसके बिहाफ पे प्लांट क्या दे रहा है फंजाई को? फूड। तो दिस इज द इंटरेक्शन इन विच द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। प्लस प्लस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मीन्स दैट इट इज द इंटरेक्शन इन विच इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ उनको रहने में फ़ायदा है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही हैं। ऐसा इंटरेक्शन कहलाता है म्यूचुअलिज्म। क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म। नाउ मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, फॉर एग्जाम्पल दैट the interaction between plant and animals। plants and animals। बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनको एनिमल्स से क्या फ़ायदा है? अगर आप देखें तो जो प्लांट्स के लिए एनिमल्स क्या रोल करते हैं? प्लांट्स के लिए एनिमल्स पॉलिनेशन में मदद करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड में मदद करते हैं। तो फिर इसके बिहाफ पर प्लांट उनको क्या करता है? प्लांट उनको रिवार्ड क्या देता है? प्लांट उनको रिवार्ड में देता है नेक्टर, एडिबल पॉलन और साइट देता है फॉर एग लेइंग। बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं जो फ्लावर में अपने एग लेइंग करते हैं, यानी ओवी पोजीशन करते हैं। क्लियर हुआ? तो दिस इज इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी इंटरेक्शन कैसा बता सकते हैं? म्यूचुअलिज्म। क्या बता सकते हैं बच्चों? म्यूचुअलिज्म। कि प्लांट को पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए एनिमल डिस्पर्सल ऑफ सीड और पॉलिनेशन में मदद कर रहा है, तो प्लांट उसको रिवॉर्ड में क्या दे रहा है बच्चों? नेक्टर दे रहा है, एडिबल पॉलन दे रहा है और उसको साइट प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग लेइंग। क्लियर हुआ? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं एक स्पेशल केस जिसको आप नाम देखेंगे स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन। बेटा स्यूडो वर्ड का मतलब हो गया फॉल्स, कॉपुलेशन का मतलब आप समझ गए कि द एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉपुलेशन। होता क्या है? एक ऑर्किड है जिसको आपने लेसन नंबर 1 में देखा होगा, लेसन नंबर 1 या 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ऑर्किड है जिसको कहते हैं मेडिटेरियन ऑर्किड ओफाइरिस। बच्चों जो मेडिटेरियन ऑर्किड ओफाइरिस है वो क्या होता है कि जो उसका जो फ्लावर है वो फ्लावर कैसा होता है बच्चों? वो रिजेंबल द फीमेल बी। तो जो मेल बी होता है वो फीमेल बी समझकर उस फ्लावर पे कॉपुलेशन के लिए आता है। तो वो फ्लावर होता है, बी तो होती नहीं है फीमेल, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया? स्यूडो
कॉपुलेशन। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि जिस समय मेल भी उस फ्लावर के साथ स्यूडो कॉपुलेशन कर रहा होता है, फीमेल बी समझकर, उस समय पॉलन डस्ट जो है, जो पॉलन ग्रेन है, वो उसकी बॉडी पे डस्टेड हो जाते हैं। अब वो मेल भी उसी स्पीसीज़ के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाता है और पॉलिनेशन कंप्लीट करता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। प्लस प्लस means that both are benefited. Male is satisfied by the pseudo copulation and the for plant pollination take place by the help of the male bee. Clear हुआ? तो this is another example of mutualism. Now we move to discuss the another interaction, very interesting interaction, that is predation. That is प्रीडेशन। प्रीडेशन बच्चों, प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन इज अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ नेचुरल वे प्रीडेशन। फॉर एग्जाम्पल दैट स्पैरो इज द प्रीडेटर एंड सीड और ग्रेन इज द प्लांट, सीड एंड ग्रेन इज द प्रे। फॉर एग्जाम्पल दैट टाइगर is the predator and deer is the prey. So this is a natural way of transferring of energy to the higher trophic level in the ecosystem. पहला फायदा predation का। दूसरा फायदा बच्चों predation का, predation क्या करता है? predation keep the prey density or you can say prey population under control। जो प्रीडेटर्स हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को क्या करते हैं? अंडर कंट्रोल में रखते हैं। क्लियर हुआ? उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ने नहीं देते हैं, उनके बीच में कंपटीशन को रिड्यूस रखते हैं ताकि वो आसानी से सरवाइव कर सकें। इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। प्रीडेशन इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल। क्लियर हुआ? नाउ द थर्ड पॉइंट, बिसाइड द कंड्यूट ऑफ एनर्जी, बिसाइड द कंड्यूट ऑफ एनर्जी, these predators also help in stabilization of balance ecosystem। अगर कहीं पॉपुलेशन प्रे की ज़्यादा हो जाएगी, उनके बीच में ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, तो प्रे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो इकोसिस्टम होगा उसमें जो प्रे की डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिससे इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो इसके लिए प्रीडेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रीडेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है टू कंट्रोल द, टू कीप द population of prey under control। it is a biological control method। क्लियर हुआ? लेकिन अगर प्रीडेशन, जो प्रीडेटर है, वो काफ़ी एफिशिएंटली अपने प्रे को किल करता रहे तो क्या होगा? इट माइट बी द प्रे कुड बी अचीव द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन। कहाँ चले जाएंगे? प्रे एक्सटिंक्शन पे चले जाएंगे। एंड इट विल आल्सो इफेक्ट, ये उसको भी इफेक्ट कर देगा कुछ दिनों बाद, किसको? प्रीडेटर को भी, क्योंकि उसको फूड नहीं मिलेगा। फिर वो भी कहाँ चला जाएगा? द प्रीडेटर विल आल्सो भी मूव टूवर्ड्स द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रीडेटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेशन। ठीक है, अब हम कुछ उन बातों की बात करेंगे जो कि तुम्हारे इस कोर्स में, मेडिकल के कोर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको एक अलग से दिमाग में टॉपिक बनाएंगे, प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट प्रीडेटर्स, अगेंस्ट प्रीडेशन। क्लियर हो गया? देखिए ज़रा इसको ध्यान से बच्चों। जो ये फॉर एग्जांपल दैट मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको मोनार्क बटरफ्लाई से। मोनार्क बटरफ्लाई बच्चों, जो ये मोनार्क बटरफ्लाई होती है, ये मोनार्क बटरफ्लाई
जब कैटरपिलर स्टेज होती है इसकी, तो ये मोनार्क बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर होते हैं वो पॉइजनस बीट खाते हैं, जिसके कारण जब ये एडल्ट होते हैं तो इनकी बॉडी हो जाती है डिसटेस्टफुल। तो जो मोनार्क बटरफ्लाई के प्रेडेटर होते हैं वो उस बटरफ्लाई को खाने से अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं अवॉइड? क्योंकि एडल्ट की बॉडी कैसी हो जाती है? डिसटेस्टफुल। क्यों हो जाती है डिसटेस्टफुल? क्योंकि कैटरपिलर स्टेज में ये पॉइजनस बीड्स को खा लेते हैं, जिससे इनके अंदर एक्वायर हो जाता है करेक्टर डिसटेस्टफुल बॉडी का फॉर द प्रीडेटर। क्लियर हुआ? तो दिस इज अ स्पेशल प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेशन। क्लियर हुआ? सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लांट कैलोट्रोपिस, इन केस ऑफ प्लांट कैलोट्रोपिस। बच्चों कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या कहते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लूकोसाइड्स। बेटा ये जो कार्डियक ग्लूकोसाइड्स होते हैं ये हार्मफुल केमिकल होता है। इस कारण से कैलोट्रोपिस को जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ब्राउजर्स होते हैं, जो ग्रेजर्स होते हैं, वो इसको खाने से अवॉइड करते हैं। क्लियर बात हो गई? तो कुछ केमिकल का नाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम इज़ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्रे प्रीडेशन डिफेंस प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। द थर्ड एग्जाम्पल इज सम प्लांट लाइक अकेसिया, सम प्लांट लाइक अकेसिया, कैक्टस। बच्चों क्या होता है कि अकेसिया हुआ, कैक्टस हुआ, इनकी बॉडी में सूट मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइंस में, थॉर्न्स में। अब ये जो स्पाइंस और थॉर्न्स होते हैं एक तरह से इनके लिए प्रेडेटर के अगेंस्ट में डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस ऑर्गन का काम करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इनको खाने से अवॉइड करते हैं ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेशन। आगे चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें एक प्रोसेस है कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज्ड बेटा जो कैमोफ्लेज होता है, कैमोफ्लेज्ड, कैमोफ्लेज का मतलब होता है अगर कोई एनिमल्स अपने लुक को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर ले। मीन्स दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म क्रिप्टिकली चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट फॉर व्हाट? टू मिसगाइड द प्रीडेटर, ताकि वो प्रीडेटर को क्या कर दे? मिसगाइड कर दे, प्रीडेटर उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए इन्वायरमेंट में। एंड दिस इज नोन एज कैमोफ्लेग्ड। क्या कहलाता है ये? कैमोफ्लेग्ड, CAMOU। क्लियर होती हुई? तो दिस इज नोन एज कैमोफ्लेग्ड एक्टिविटी। तो दीज फोर आर द इम्पॉर्टेंट प्रे डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द प्रीडेशन। तो आपने देखा म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल, आपने प्रीडेशन को देखा कि इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी टू हायर ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब आप देखिए, आपने देखा प्रीडेशन से कंट्रोल भी होता है किसकी पॉपुलेशन? प्रे की, ताकि वो आपस में उनमें कंपटीशन ना हो, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। नाउ आई वुड लाइक to discuss, due to the short of time because this is a part 1, I would like to discuss amensalism. Clear? बच्चों amensalism क्या है? It is a interaction in which one species is harmed and another species is neither benefited nor harmed. It's called amensalism. Just opposite to the commensalism. Commensalism is very important because in case of commensalism, the one species is benefited and another species is neither benefited nor harmed. But in amensalism, one species is harmed, देखिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, and another species is neither benefited nor harmed. चलिए amensalism को समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक फंगस का मैं नाम ले रहा हूँ, पेनिसिलियम। एक मोल्ड है, वो एक एंटीबायोटिक बनाता है, सिक्रीट करता है।
वो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। हालांकि पेनिसिलिन जो नेगेटिव साइन बनाए यानी मतलब ये बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन मोल्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एमेंसिलिज्म। तो जो पेनिसिलियम है, जो उससे पेनिसिलिन निकलती है, वो क्या करती, किल द बैक्टीरिया। वो किसको किल करती बच्चों, बैक्टीरिया को, लेकिन खुद मोल्ड जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। तभी तो यहाँ नेगेटिव और न्यूट्रल का साइन है, मीन्स वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, कमेंसिलिज्म पे बात करते हैं। बच्चों जो कमेंसिलिज्म है, पहले प्लस और न्यूट्रल, जीरो प्लस जीरो, साइन बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार मेडिकल का क्वेश्चन इन साइन के बेस पर आ सकता है, डेफिनेशन बनाकर आ सकता है। फॉर एग्जांपल दैट मैं कमेंसिलिज्म को आपको डेफिनेशन की फॉर्म में, मेडिकल के फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। Now, this is the interaction in which one species is benefited and another species is neither benefited nor harmed. Which one of the following is the interaction? The answer is commensalism. The answer is commensalism. Clear हुआ? Now there are some example of commensalism. Look at here. For example, a small orchid found as epiphyte. किसकी तरह पाया जाता है, एपीफाइट। एपीफाइट का मतलब बच्चों होता है, अगर कोई छोटा पेड़ किसी बड़े पेड़ पर डेवलप कर रहा है तो वो कहलाता है एपीफाइट। क्या कहलाता है, एपीफाइट। तो व्हेन अ स्मॉल ऑर्किड डेवलप एज एपीफाइट इन अ बिग मैंगो ट्री, इन अ बिग मैंगो ट्री, तो बेटा जो ऑर्किड है उसको तो शेल्टर भी मिल रहा है और नरिशमेंट भी मिल रहा है, लेकिन जो मैंगो का ट्री इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ऑर्किड प्लांट। तो इन दिस द ऑर्किड इज प्लस एंड मैंगो इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। सो द ऑर्किड विच फाउंड एज एपीफाइट ऑन अ बिग मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ commensalism, is an example of commensalism. Now we move to the another example. For example बच्चों, for example the barnacles किसके ऊपर पाए जा रहे हैं, बैक ऑफ वेल। तो जो बार्निकल्स होते हैं वो वेल के बॉडी की सरफेस पर अटैच रहते हैं। अब वेल को बार्निकल से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, यानी वेल इज़ नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, एक स्पीसीज। लेकिन बार्निकल्स को फ़ायदा है, बार्निकल्स वेल्स के साथ अटैच रह के मूव करते रहते हैं एट डिफरेंट लोकेशन फॉर द सर्च ऑफ फूड। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ barnacle is benefited but whale is neither benefited nor harmed, means that this is an example of commensalism. This is an example of commensalism. आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। क्लाउन फिश, सी एनीमोन, इसमें क्लाउन फिश बच्चों प्लस है, सी एनीमोन्स नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड है, यानी मतलब प्लस जीरो, मीन्स दैट commensalism, मीन्स दैट commensalism. नाउ व्हाट हैपेंड, दिस क्लाउन फिश जो होती है ये सी एनीमोन्स के टेंटिकल से दूर होकर बनी रहती है। अब इसके जो सी एनीमोन्स के टेंटिकल्स हैं वो क्लाउन फिश की प्रेडेटर से क्या करते हैं, एनिमी से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन सी एनीमोन्स को नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लाउन फिश। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ commensalism in which clownfish is benefited but sea anemones is neither benefited nor harmed. Now another example, a very good example, in case of cattle bird, cattle egret, cattle egret या water buffalo egret। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जो कैटल्स होती हैं उनके पास इग्रेट बर्ड्स उन्हीं के पास बनी रहती हैं, उन्हीं के पास बनी रहती हैं, उन्हीं की बॉडी पर बैठी रहती हैं। होता क्या है, जिस समय कैटल
वेजिटेशन में आती हैं, वेजिटेशन को स्टिर करती हैं। तो जो इंसेक्ट होते हैं नीचे वेजिटेशन में, जो एग्रेट को दिख नहीं रहे होते हैं, वो इंसेक्ट फ्लश्ड होते हैं, ऊपर आते हैं और एग्रेट उनको पिक्ड कर लेती है। क्या कर लेती है? पिक्ड कर लेती है। तो एग्रेट को तो बेनिफिट हो गया, एग्रेट को क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। लेकिन कैटल बाय द प्रेजेंस ऑफ एग्रेट ऑन हिज बॉडी और नियर बाय द कैटल इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। क्लियर हुआ? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। अब आपको आगे ले चलते हैं पैरासिटिज्म पर। बच्चों, जो पैरासिटिज्म होता है उसमें पैरासाइट तो बेनिफिटेड है, लेकिन स्पीसीज बी जो है होस्ट, वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वो हार्म्ड है। तो इट इज़ अ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर स्पीसीज इज हार्म्ड। बच्चों, पैरासाइट्स के अंदर कुछ पैरासिटिक एडेप्टेशंस होती हैं, जैसे हॉस्ट की बॉडी में एंकर करने के लिए उनके अंदर एडहेसिव ऑर्गन्स का होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव रेट होना, एफिशिएंसी होना रिप्रोडक्शन की, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होना, क्योंकि एंडो पैरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर हैं, डाइजेस्टेड फूड ले रहे हैं, तो उनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ? एब्सेंस ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स की भी एब्सेंस रहती है। क्लियर बात हो गई? एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर हैं, आउटसाइड द बॉडी हैं, तो वो एक्टोपैरासाइट हैं, जैसे हर्ड लाउस, माइट्स, टिक्स। दीज आर मॉस्किटो द पार्शियल एक्टोपैरासाइट। मॉस्किटो क्या है? पार्शियल है, कभी कन्फाइंड नहीं रहता एक होस्ट के ऊपर। सो पैरासिटिज्म इज अ इंटरेक्शन इन विच पैरासाइट इज बेनिफिटेड, क्योंकि पैरासाइट तो अपनी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दैट मलेरियल पैरासाइट्स। अब मलेरियल पैरासाइट्स जिसमें कि वेक्टर मॉस्किटो के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमन आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो पैरासाइट तो अपनी लाइफ जी रहा है, लेकिन जो ह्यूमन है उसमें क्या हो रहा है? मलेरिया डिजीज़ कॉज हो रही। तो ह्यूमन जो होस्ट होगा इज हार्म्ड। क्लियर हुआ? इसी तरह एस्कैरिस, lumbricoides in the intestine is the parasitism. Example of parasitism. For example, that Taenia solium is a endoparasite. Is an endoparasite. For example, that Plasmodium vivax या falciparum, कोई भी स्पीसीज ले लीजिए, is an example of endoparasites. For example, that amoeba histolytica, which is responsible to cause the disease amoebic dysentery, is an endoparasite. तो क्लियर हुआ? तो this type of the interaction in which parasite is benefited, because parasite obtain their food as well as complete their life cycle within the body of the host, but host is suffered by the disease, so host is harmed and parasite is benefited. So such type of the interaction in which one species is benefited, that is parasite, and another species is harmed, that is host, is called parasitism, is called पैरासिटिज्म। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, लाइक कुकूज, द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन, लाइक कुकूज, जो कुकूज होते हैं, जो कोयल होती है, ले एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो, वो बच्चों क्रो के नेस्ट में एग देती है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस इंटरेक्शन को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या कहते हैं? ब्रूड पैरासिटिज्म। अगर कुकूज ले एग इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। So today we have completed mutualism, means that both the individuals, both the species A and B are benefited with each other. We have discussed lichen, mycorrhiza, plant and animal, and pseudocopulation in case of Mediterranean orchid. Now predation,
we have know that predation is the natural way of transferring of energy to higher trophic level. It is a natural biological control of the population of prey, and we have also discussed some prey defense mechanism अगेंस्ट द प्रेडेशन. प्रे के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें मैंने मोनार्क बटरफ्लाई की बात की, हम लोगों ने कैमोफ्लेज की बात की, हम लोगों ने बात कर ली इसमें कैलोट्रोपिस की जो कार्डियक ग्लूकोसाइड सिक्रीट करता था, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द कमेंसलिज्म, जिसमें हम लोगों ने ऑर्किड प्लांट एक एपीफाइट की तरह बिग मैंगो ट्री पर पाया जा रहा. तो ऑर्किड को तो शेल्टर और न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन बड़े प्लांट जो बिग ट्री है इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. इसी तरह से क्लाउन फिश और सी एनिमोन्स का एसोसिएशन कमेंसलिज्म था. इसी तरीके से कैटल बर्ड इग्रेट का एसोसिएशन, कैटल बर्ड इग्रेट का और वाटर बफेलो का जो एसोसिएशन था वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल था. क्लियर हुआ? तो in case of amensalism we have discussed about the penicillium, which produce the antibiotic penicillin which kills the bacteria, but itself the mold is not neither benefited nor harmed, but bacteria is kills, but it kills the bacteria. So bacteria species is harmed, but mold is neither benefited nor harmed. This is a negative, and zero is amensalism. Most important point. Commensalism plus 0, one species is benefited, plus sign for beneficial, and neutral sign is 0, neither benefited nor harmed. Now in the next lecture I will start competition, is more important. That's why I will continue in the next short lecture. Clear? So this is all about the first part of the population interaction. We have discussed mutualism, predation, parasitism, commensalism, amensalism, and then competition, in which both are harmed, and competition are of two types, intraspecific and interspecific. बच्चों एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगा, इसी प्रीडेटर में आप एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ ऐसी एग्जॉटिक स्पीसीज़ होती हैं जिनको कहीं बाहर से लाकर किसी जियोग्राफिकल रीजन में रखा जाता है. जिन्हें जिस जियोग्राफिकल रीजन में रखते हैं वहाँ इनका इन्वेजन, इनकी ग्रोथ बहुत एक्सेसिव रेट से होती है. कारण क्या होता है? क्योंकि उनका नेचुरल प्रेडेटर तो उस जगह का था जहाँ से लाए थे, वहाँ पे तो इनका नेचुरल प्रेडेटर था इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन जब इनको नए जियोग्राफिकल रीजन में लाए तो इनका इकोलॉजिकल प्रेडेटर वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर नहीं है. इसके कारण ये बहुत ही इन्वेसिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ हो जाती है. क्लियर बात हो गई? तो दिस इज़ जिसके कारण जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीसीज होती हैं, दे सफर्ड एंड थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन. दिस इज ऑल अबाउट द प्रेडेशन. क्लियर हुआ? द लास्ट टॉपिक विच आई हैव डिस्कस अबाउट द एक्सोटिक स्पीसीज इज इंक्लूडेड इन द प्रेडेशन. नाउ कंपटीशन मे बी ऑफ टू टाइप, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक. Inter means the competition amongst the individual are two different species. When the competition take place between the individual or two different species, means that they are compete to each other for two things, food and shelter. Food and shelter, खाने और रहने की लड़ाई है. लेकिन अगर कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक होगा, INTRA, अगर इंट्रा होगा, मीन्स दैट द कंपटीशन अमंग्स द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, अमंग्स द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. आपने देखा था सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन के लिए प्रेडेटर, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रेडेशन जो है नेचुरल वे है, बायो कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को ताकि उसमें कंपटीशन ना हो. तो अगर सेम इंडिविजुअल की स्पीसीज में कंपटीशन होता है तो वो तीन चीज़ों को होता है, फूड, shelter and reproductive mate. So in the next lecture we will discuss about the competition. Clear हुआ? This is all about the first part for population interaction. Means that the population interaction means that the interspecific interaction amongst the individual of population of two different species. क्लियर हुआ? जिसमें तीन साइन आपको ध्यान रखने हैं, प्लस फॉर बेनिफिशियल,
क्लियर हुआ। नेगेटिव फॉर हार्मफुल या डिट्रीमेटरल, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड देन न्यूट्रल साइन इज जीरो, मीन्स दैट नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। एंड द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल. I have discussed few examples of mutualism, predation, parasitism, commensalism, amensalism. These are very important. Example देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाउन फिश और सी एनिमोन्स में कैसा इंट्रैक्शन है, ऑर्किड और बिग मैंगो ट्री में कैसा इंट्रैक्शन है, एल्गी एंड फंजाई में लाइकेन में कैसा इंट्रैक्शन है. तो these all are very important for your medical point of view. क्लियर हुआ? Thank you very much. Have a nice day.